All right, so continuing with more questions on superposition of waves. So in the last lecture, we have solved some questions of superposition of waves. We'll continue with it. Question number 16. A stretched wire of length 260 centimeter is set into vibrations. It is divided into 3 segments whose frequencies are in the ratio 2:3:4. Their lengths must be in the ratio. तो ऐसा है, हमारे पास एक वायर है, stretched wire है, and you have this stretched wire divided into 3 different segments. So let's say segment number 1. Okay, so segment number 1, segment number 2, and segment number 3. Frequency of vibration. So this wire is vibrating, and frequency of vibration का जो ratio है first, second और third segment का, so that is given by F1 is to F2 is to F3 is nothing but 2:3:4. Okay. अब आपको पूछा है what is the ratio of length. So one thing you should be knowing that frequency is P, where P is आपको पता है where P is number of loops होते हैं इसमें upon 2L under root of tension by mass per unit length. So what we see is frequency is inversely proportional to length. आपको याद होगा हमने vibrations of stretch string का जब theory देखा था, तो this is the formula that you get. Frequency of vibration is P upon 2L under root of T by M ऐसा आता है, तो frequency is inversely proportional to length आता है. This is what you should be knowing. तो इसका मतलब length is inversely proportional to frequency. मतलब L1 is to L2 is to L3 is nothing but it is equal to 1 upon F1 is to 1 upon F2 is to 1 upon F3. Okay, so now if you know this much, अब आपको लेंथ का more or less लेंथ का रेशियो आपको मिल जाएगा. ओके, तो आपको लेंथ का रेशियो मिल जाएगा. आपको लेंथ पूछा है, तो यू विल हैव L1 is to L2 is to L3 equal to 1 upon 2 is to 1 upon 3 is to 1 upon 4. राइट, आपको पता है कि अगर ऐसा रहा तो व्हाट यू डू इज, अभी ये बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स है, तो L1 is to L2 is to L3 should be equal to 6 is to 4 is to 3. So you should know what you do to have, अभी डिनोमिनेटर है ना, तो इसको आप इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हो आपको पता होना चाहिए. ओके, गुड. सो यू शुड नो दिस. हमको मिल गया लेंथ का रेशियो. हमको चाहिए इंडिविजुअल लेंथ ऑफ सेगमेंट. मतलब हमको L1 की वैल्यू निकालनी है, L2 की वैल्यू निकालनी है और L3 की वैल्यू निकालनी है. बट व्हाट वी हैव इज वी हैव रेशियोज. तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये नंबर आते हैं ना, इसको ऐड कर लेना. तो लेट x is equal to 6 plus 4 plus 3, that is 13. फिर आपको लेंथ L1 कैसे निकालोगे? लेंथ L1 will be, ये जो पहला नंबर है 6 upon 13 into total length, but total length आपको दिया हुआ है, total length of wire capital L is 260 centimeter. So this is equal to 6 by 13 into 260, 1 and 20 तो 120 centimeter. Similarly L2 will be यहाँ का second number 4 divided by 13 into L, तो ये आ जाएगा आपका 4 by 13 into 260. तो वापस से 1 and 20 this is 80 centimeter. Okay. And lastly L3 will be 3 by 13 into capital L, which is 3 by 13 into 260, which is equal to 60 centimeter. तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए, नंबर 1. दूसरा, आपको थोड़ा सा स्कूल का बेसिक पता होना चाहिए, स्कूल मैथमेटिक्स, कि आपके पास अगर लेंथ का रेशियो 1 upon 1/2 is to 1/3 is to 1/4 आता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट्स समथिंग यू नीड टू नो. और आखिरी में
अगर आपके पास लेंथ का रेशो है L1:L2:L3 equal to 6:4:3, so in this case how do you find out L1, L2 and L3? This is something you need to know. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so it is not very difficult question, but you require some basic mathematics from school. तो ये पता होना चाहिए आपको. Okay, let's move to next question. And by the way, ये सारे questions मैं पिछले साल जो CET एग्जाम में आए हैं वहां से ले रहा हूं. तो this appeared in 2019 CET exam. Next question: a simple harmonic progressive wave is represented as y equal to 0.03 sine of pi 2t minus 0.01 x in meters. At a given instant of time, the phase difference between two particles 25 meter apart is. सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वेव का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो 0.03 साइन ऑफ पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई टी माइनस 0.01 पाई एक्स मीटर, ऐसा आ जाएगा ये. फिर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स. तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एम्पलीट्यूड a मिल जाएगा 0.03, आपको ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई. ओके राइट. एंड देन अल्टीमेटली यू विल आल्सो गेट यहां से k की वैल्यू एज 0.01 पाई. So just by comparing you have all this. Now if you remember, अगर आपको याद होगा तो आपको याद क्या होना चाहिए? डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन path difference and phase difference. And by the way, at a given instant of time, the phase difference between two particles 25 meter apart. 25 meter मतलब आपको path difference दिया हुआ है. So you have been already given path difference. Path difference between two particles is denoted by delta, which is 25 meter. आपको रिलेशन पता होना चाहिए between path difference and phase difference. So relation between path difference delta, path difference delta and phase difference phi, and phase difference phi is delta is equal to, ये आपको पता होना चाहिए, it is k times of phi, where k is 2 pi by lambda. वो हमारे पास ऑलरेडी है. ओके ये यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती है. दैट इज व्हाई यू नीड टू बी लिटिल श्योर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग. ये एक्चुअली उल्टा होता है. तो इट इज लाइक फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k इंटू पार्ट डिफरेंस. ऐसा क्यों? क्योंकि k अगर आपको याद होगा तो 2 पाई बाय लैम्बडा था. इट वाज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस भी मीटर में, लैम्बडा भी मीटर में. सिर्फ 2 पाई इज एंगल और फेज डिफरेंस इज एंगल. तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पार्ट डिफरेंस. और ये आपको दिया है 0.01 पाई और डेल्टा आपके पास है 25. तो करो इसको मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर. ओके सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट. तो बहुत सिंपल सा केस है ये. इज एक्सट्रीमली सिंपल राइट. हियर there is a small chance of error. क्यों error? तो first of all, in some books what you will find is, इसको solve करने का दूसरा तरीका भी होता है. और क्या होता है वो? k is equal to 2 pi by lambda, right? Okay, तो यहां से पहले लैम्बडा भी फाइंड कर सकते हो. 2 pi by k. ऑलराइट, ये आ गया 2 पाई बाय k. k की वैल्यू डाल दो. फाइन. वंस यू पुट यू कैन फाइंड आउट लैम्बडा एज 200 मीटर फ्रॉम हियर. दैट इज आल्सो फाइन. ऐसा चलेगा. ऐसा क्यों चलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फिर k इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा इज 25. फिर लैम्बडा की वैल्यू डालो, फिर सॉल्व करो.
बात एक ही है. It doesn't matter if you directly solve. Okay, so I don't want you to keep putting unnecessary time. आपको अगर जनरल इक्वेशन नंबर 2 याद है तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से आप कंपेयर करके डायरेक्टली के निकालो, फिर फेज डिफरेंस इक्वल टू के इनटू पार्ट डिफरेंस यूज करो, डन. दिस इज सिंपल. ओके, तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज पाई इंटू 25 अपॉन ये जो 10 पावर माइनस 2 था नीचे जाके 10 पावर प्लस 2 होगा, मतलब 100 होगा. तो 1 जा एंड 4 जा, मतलब पाई बाय 4 रेडियन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इजी है. सिर्फ आपको दो चीजें, एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2, और आपको रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस इज k टाइम्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 3. ये दो चीजें याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, a pipe open at both ends and a pipe closed at one end have same length. So pipe open at both ends and pipe closed at one end have same length. The ratio of frequencies of their pith over tone. So if you remember, for pipe open at both ends, frequency of pith over tone. Pith over tone, आपको याद होगा, for a pipe open at both ends all the harmonics are present. मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फिर 2n है, फिर 3n है, फिर 4n है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होता है उस केस में v/2l. It is v/2l for pipe open at both ends. Okay, so and you should know that इसमें सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. तो पीथ ओवरटोन, व्हाट इज ओवरटोन? फंडामेंटल के बाद जो पहली वैल्यू है दैट इज फर्स्ट ओवरटोन, इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं. उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है दिस इज सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक. तो ओवरटोन मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी. तो मैं जब N2 लिखता हूं सेकंड या फिर फर्स्ट, मान लेते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल इज 2n, मतलब 1 + 1n, मतलब p + 1n, है ना. अगर मैं NP बोल रहा हूं तो, क्योंकि अगर मुझे N2 फाइंड करना है तो 2 + 1 लिखूंगा मैं, राइट. N3 फाइंड करना है तो 3 + 1 लिखूंगा मैं, तो so on so forth. तो आपको पता होना चाहिए पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होता है p + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस is v/2l. For a pipe open at both the ends, you have fundamental frequency as v/2l. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो for pipe open at both ends, pith overtone is p + 1 v/2l. Similarly, for closed pipe, for pipe closed at one end, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका होता है यहाँ पे v/4l. और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. यू हैव ओनली ऑड हार्मोनिक्स, दैट इज यू हैव n, then 3n, then 5n, then 7n, so on so forth. तो पीथ ओवरटोन मतलब फर्स्ट ओवरटोन 3n है, तो फर्स्ट ओवरटोन को मैं लिखूंगा 2p + 1n. So first overtone चाहिए तो n1 = 2 × 1 + 1 × n, that is 3n, है ना. तो जनरल फॉर्मूला बनता है आपका पीथ ओवरटोन के लिए 2p + 1. तो पीथ ओवरटोन फॉर अ क्लोज्ड पाइप इज 2p + 1 times of fundamental, but fundamental frequency for a pipe closed at one end is v/4l. Okay, well, LC और LO, बट वो दोनों इक्वल दिए है तो इसलिए हम बाद में कैंसिल आउट कर देंगे. हमको क्या पूछा है? रेशियो पूछा है. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज, तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज, तो ये पूछा है आपको. सो दिस इज इक्वल टू सिंपल
तो सिर्फ ये जो दो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, इसका हमको रेशियो लेना है, दैट्स इट। और क्योंकि लेंथ दोनों केस में सेम है तो कैंसल कैंसल। v is स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, ये 2 ऊपर जाएगा तो यू विल गेट 2p plus 1 into 2p plus 1 inside bracket है क्या? ऑप्शन नंबर सी है। तो यू कैन सॉल्व दिस वे। तो क्वेश्चन इजी था, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो इट्स प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। तो एज यू सी क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ बेसिक्स पता हो गए तो इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, मतलब एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच्ड है, सोनोमीटर वायर इज एग्जांपल ऑफ a stretched string. The fundamental frequency of sonometer wire increases by 9 Hz if the tension is increased by 69%, keeping the length constant. The frequency of wire is. So the thing is, what you need to know is frequency is 1 upon 2L root of T by M. Okay, length constant है, good. और मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है क्योंकि हमने वायर नहीं चेंज किया। अगर वायर पहले कॉपर का था तो अभी भी कॉपर का है, वायर पहले आयन का था तो अभी भी आयन का है, तो वी आर नॉट चेंजिंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। सेकेंड केस में क्या बोला है? सेकेंड केस में बोला है कि फ्रीक्वेंसी n डैश इज n plus 9, frequency increases by 9 if tension is increased by 69%. So T dash equal to T plus 69% of T, है ना? मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसको वैसे। By the way, I will solve it for you, but otherwise you can write down 1.69 times of T ऐसे लिख सकते हो, but I will solve it for you. So T plus 69 by 100 into T, so that is equal to T plus 0.69 T, so that is equal to 1.69 T। हो गया। ओके, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर मतलब n पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बोलोगे n डैश बाय n या फिर n अपॉन n डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ t डैश बाय t, t अपॉन t डैश, नॉट t डैश बाय t, t अपॉन t डैश। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। ओके, तो n is equal to under root of t by t dash times of n dash, right? So, but as you know from here, t by t dash is 1 upon 1.69. Okay, so therefore you will have n equal to under root of 1 upon 1.69. ओके, इंटू n डैश इज n plus 9। ये आपको डायरेक्ट आए तो ठीक, डायरेक्ट नहीं आए तो 100 अपॉन 169। ओके, वैसे बाय द वे इट वाज डायरेक्ट आल्सो, 1 अपॉन 1.3 आ जाएगा वो, बट इन एनी केस तो ये आपको मिल जाएगा 10 by 13, 100 का स्क्वायर रूट इज 10 और 169 का 13 है, n plus 9 into n, तो ये आपको मिल जाएगा 13n is equal to 10n plus 90, मतलब 3n is equal to 90, तो n equal to 30 है क्या? ऑप्शन नंबर सी, 30 Hz। So this is how you can solve this particular question. So it is an extremely simple question. Okay, सिर्फ आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन क्या है। So they are directly related, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ tension. Next question, for formation of beats, two sound notes must have different amplitudes and different frequencies. No. Exactly equal frequencies? No. Exactly equal amplitudes only? No. Nearly equal frequencies and equal amplitude? Yes. तो आपको पता है बीट फॉर्मेशन में क्या होता है? बीट फॉर्मेशन में फ्रीक्वेंसी
और एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होने चाहिए. यू कैन नॉट हैव टू वेव्स एग्जैक्टली ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड. तो अगर आपको याद होगा बीट फॉर्मेशन के केस में what we have learned is that you should have two or more waves of nearly equal frequency and equal amplitudes. तो मैंने ऐसा बताया था that you should have nearly equal amplitude and nearly equal frequency. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा that will give a complicated structure जिसको हमने पेट किया था. So you will have something like this. Okay, तो ऐसा होगा वो. It will be something like this. So beat formation में waxing और waning होता है. So there are points like this where you have no sound, wane. There is point where you have maximum sound, which is wax. तो यहाँ पे you should have nearly equal frequency and nearly equal amplitude. तो theory question था ये. Next question. 22. A string is vibrating. Now it looks good. A string is vibrating in its fifth overtone between two rigid supports 2.4 meter apart. The distance between successive node and antinode is. तो हमारे पास दो rigid support है. यहाँ से let's say यहाँ तक. There's a string over here. So length of string is 2.4 क्योंकि rigid support का distance जो है that is 2.4 meter. तो length of the string is overall 2.4 meter. ऐसा बोलने की कोशिश है ये. अब if it is in its fifth overtone, so fifth overtone आपको पता है यहाँ पे 6 लूप बनते हैं basically. You should know this. You should know. अगर नहीं याद हो तो बता देता हूँ. If you don't remember, doesn't matter. I'll tell you why. How you can say 6 loops. Okay. So if you remember, fundamental frequency में for a stretch string you have just one loop. Fundamental में. Next mode में second harmonic या फिर first overtone बोल रहा हूँ. First overtone में 2 लूप. सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप बनते हैं. थर्ड ओवरटोन में 4 लूप बनेंगे. फोर्थ ओवरटोन में 5 लूप बनेंगे और फिफ्थ ओवरटोन में 6 लूप बनेंगे. तो 6 लूप आपको बनाने पड़ेंगे. तो क्या करोगे? तो पहले मैं नोड्स को पॉइंट आउट कर लेता हूं. एक नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां. 7 nodes are required to have 6 loops क्योंकि 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड मतलब 2 नोड और एक एंटी नोड. नोड एंटी नोड. Okay, so as you know that for fifth overtone you have 6 loops. 6 loops require you to have in total 6 लूप चाहिए. तो 7 नोड होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 and one more is required. तो एक और नोड के यहाँ पे आएगा 7. You will have something like this. Okay, तो मैं पूरा तो ड्रॉ ठीक है कर ही लेता हूँ. नो इश्यूज. तो you will have something like this. समझ लेना आप. थोड़ा ड्राइंग को छोड़ दो. Pardon me for drawing. समझ लेना. राइट. तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास इन दोनों का, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ वायर विच इज 2.4 मीटर. ओके, आपको पूछा डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड. यू ऑलरेडी नो दिस. आपको ऑलरेडी पता है. क्या पता है?
दैट सक्सेसिव नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस क्या होता है. आई मीन ऑफ कोर्स यू नो इट इज नोड टू नोड इज लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा बाई 4 बेसिकली डिस्टेंस होता है. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन a node and an antinode, node and an antinode successive होने चाहिए एक के बाद एक, is lambda by 4. This is already you know, but lambda कैसे निकालेंगे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो what you have to do is, अभी आपको ये डिस्टेंस दिया है, टोटल लेंथ दिया है. तो if you remember this to this lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, वापस lambda by 2, वापस lambda by 2, lambda by 2 and lambda by 2. तो टोटल 3 लैम्बडा डिस्टेंस है. तो ये जो लेंथ है L, दैट इज टोटल 3 लैम्बडा. तो लैम्बडा इज लेंथ बाय 3. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेंथ बाय 3 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा आपका 2.4 अपॉन 12. ओके, 1 जा एंड 0.2 जा, हो गया आपका आंसर 0.2 मीटर खत्म. ओके, ऐसा भी है with the help of formula you can also find out, with the help of formula also you can do it. Okay, so but I would prefer you to know this, तो ऐसा पता होना चाहिए, that is better thing to do. Next question, 23rd, n number of waves are produced on a string in 0.5 second. So n number of waves are produced in 0.5 second. Okay, now the tension in the string is doubled. Assuming length and radius constant, the number of waves produced in 0.5 second for the same harmonic will be same harmonic. So how to solve this? सबसे पहले आपको पता है, for a stationary wave on a string, fundamental frequency n is 1 upon 2 times of length under root of t by m. Now what they are telling you is, assuming length and radius constant, पर यहाँ पे तो रेडियस आता ही कहाँ पे है, कहाँ पे आता है, मास पर यूनिट लेंथ में आता है. तो यू शुड नो मास पर यूनिट लेंथ इज टोटल मास अपॉन लेंथ, है ना. गुड. व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ, राइट. गुड. तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. लेंथ कैंसल. व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर रो, क्योंकि वायर है तो वायर का लेंथ अगर L है, एरिया अगर A है और रेडियस R है, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इंस्टेड you can directly write down, therefore n is equal to 1 upon 2 times of length under root of t by pi r square rho. ओके, अब ऐसा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज कांस्टेंट? लेंथ एंड रेडियस. टेंशन डबल किया है, लेंथ कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. ओके, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. मैं डायरेक्टली बता सकता था, आई वुड हैव टोल्ड यू डायरेक्टली फ्रॉम हियर इटसेल्फ, सीधा सीधा. फिर आप बोलते रेडियस कांस्टेंट क्यों बोला है? तो रेडियस कांस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को आपको इन टर्म्स ऑफ पहले रेडियस लिखना है. ओके, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि दिस टर्म हियर डज नॉट हैव एनी टेंशन डिपेंडेंस. वैसे नहीं होता है, तो अगर आप ये सब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो. नो इश्यूज एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल, यू कैन डायरेक्टली डू दैट. अब you have n dash which is proportional to t dash, therefore n dash by n is equal to under root of t dash by t, but t dash is 2 times of t, क्योंकि बोला टेंशन is doubled, so 2t by t cancel. Therefore you will have n dash equal to root 2 times of n. हो गया आंसर, खत्म.
n number of waves produced on a string in 0.5 second, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है बेसिकली. ओके, हाउ मेनी वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आधे सेकेंड में n, मतलब एक सेकेंड में 2n, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया था मतलब बेसिकली. ओके, नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 0.5 सेकेंड, मतलब टाइम सेम रखा है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, बस यही पूछ रहे हैं. नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस ऐसा बोला, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट. सो दे वेर आस्किंग यू, अगर हमने बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रख के टेंशन को अगर हमने डबल किया है, तो टेंशन डबल करने की वजह से फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो √2 टाइम्स ऑफ n. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Question number 24th. A pipe closed at one end has length 83 centimeter. Pipe closed at one end. So length of pipe closed at one end is 83 centimeter. The number of possible natural oscillations of air column whose frequency lie below 1000 hertz are. इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है जिसका लेंथ 83 सेंटीमीटर है. उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम्स whose frequency lie below 1000 hertz are. सबसे पहले आपको ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 1000 से नीचे कितने टोटल हार्मोनिक्स मिलेंगे, या फिर यू कैन से फंडामेंटल प्लस बाकी के फ्रीक्वेंसी कितने हैं टोटल. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे फंडामेंटल. आपको याद होगा इस केस में, फॉर दिस केस यू हैव V/4L एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. V आपको दिया है 332 अपॉन 4 इंटू 83. ओके, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. यहाँ पे 83 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो you will have this as 1, which is wrong. Fundamental frequency 1 hertz आ जाएगा. 1 hertz आना मतलब गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. So you have to make sure that you're doing right, क्योंकि 83 into 4 is 332, मतलब सिर्फ आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 पावर 2 मतलब 100 हर्ट्ज का है. 100 हर्ट्ज का आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. और आपको ये पता है for a closed pipe only odd harmonics are present. So you already know that in this case you have n, then you have 3n, then you have 5n, then you have 7n, 9n and so on. मतलब n कितना 100, फिर 300, फिर 500, फिर 700, फिर 900, फिर 1100. लेकिन चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमको पूछा है कि 1000 से कम कितने अवेलेबल है. तो 1000 से कम कितने हैं, टोटल 5 है. तो यू सी 1 2 3 4 and 5. So there are 5 number of possible natural vibration below 1000 for a pipe closed at one end whose length is 83 centimeter. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमको पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है. फिर हमको पता है कि क्योंकि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब n 3n 5n 7n 9n, टोटल 5 फ्रीक्वेंसी रहेगी. अगर यही क्वेश्चन आप मॉडिफाई करके बोलते हो फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो ओपन एट बोथ एंड्स में तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो n 2n 3n 4n 5n 9n 9n तक सबके सब अवेलेबल रहेंगे. तो यू विल हैव अकॉर्डिंगली इन टोटल 9 नेचुरल ऑसिलेशंस. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इंटरेस्टिंग भी था. Next question. The equation of the progressive wave is given by y equal to 3 sine of pi t by 3 minus x by 5 plus pi by 4.
where x and y are in meter, time t is in second. Which of the following is correct? So which of the following is correct? Of course, you have to compare with always standard form of simple harmonic wave. So compare with, you have to compare with y is equal to amplitude a sine of 2 pi t by capital T minus x by lambda plus phase difference phi. So you should know, मैंने बताया था आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के 7 से 8 अलग अलग फॉर्म होते हैं, 7 to 8 डिफरेंट फॉर्म्स. तो यू शुड नो दोस फॉर्म्स, क्योंकि अभी आप कंपेयर करोगे. इफ यू कंपेयर, सबसे पहले कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो व्हाट आई विल डू इज, यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर. तो सबसे पहले इसको आप लिखोगे y इक्वल टू 3 साइन ऑफ. अभी ये इशू है, यहाँ पे 2 पाई चाहिए तो 2 लिख दो, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे t/6, मतलब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स इट. तो पहले आपको ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको. अब कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड तो मिल गया आपको 3, है ना, 3. ओके, सेंटीमीटर क्या, नहीं मीटर. क्यों मीटर? एक्स एंड वाई, y मीटर में है, x मीटर में है, तो एम्पलीट्यूड मीटर में आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी में ध्यान देना, क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर, नहीं, एम्पलीट्यूड इज 3 मीटर. एम्पलीट्यूड इज 3 मीटर, तो ये तो होगा नहीं. फ्रीक्वेंसी का देखेंगे, वेवलेंथ कंपेयर करो, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, राइट. लैम्बडा इक्वल टू 10 मीटर, तो वेवलेंथ इज 10 मीटर. करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. सिंपल क्वेश्चन था, गड़बड़ होती है बिकॉज एम्पलीट्यूड 3 देखते हैं, यूनिट देखते नहीं है. डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. 3 सेंटीमीटर 3 मीटर डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो यहाँ पे आपको कंपेयर करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 10, राइट. अदर थिंग्स वी डोंट हैव टू डू, क्योंकि हमको आंसर मिल गया है. नहीं तो फिर मैं ये v भी फाइंड कर सकता हूँ. यू कैन फाइंड इट आउट, इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट v. फ्रीक्वेंसी फाइंड करना भी कोई बड़ी डील नहीं है, बट वी हैव आवर आंसर, सो विल नॉट डू दिस. बट एज एन एक्सरसाइज ऑफ कोर्स यू कैन डू, आप कर सकते हो. फाइंड दो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा विल गिव यू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा आपको. तो यू कैन फाइंड इट आउट इफ यू वांट टू सॉल्व, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज्ड एंड ओपन organ pipes have same length. तो वापस से सेम लेंथ है दोनों का, have same length when they are vibrating simultaneously in first overtone. देखो, ओपन पाइप और क्लोज पाइप, तो ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का लेंथ सेम है. ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, इट इज 2 times of fundamental frequency, और fundamental frequency here is, you remember, if you remember, it is v by 2l. तो ये आपको मिल गया फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. आई विल डिनोट दिस बाय सिंपली l, बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों का सेम है, तो फिर वी शुड नॉट बी राइटिंग अगेन एंड अगेन l ओपन l क्लोज. ठीक है. सिमिलरली फॉर अ क्लोज पाइप, first overtone is 3 times of fundamental frequency, which is 3, or fundamental frequency here is v by 4l, क्योंकि closed pipe के लिए v by 4l आता है, इसलिए 4l. अब उन्होंने बोला है कि the closed and open organ pipes having same wavelength, when they are vibrating simultaneously in first overtone produce 3 beats. मतलब ऐसा they are trying to tell you that n1 open minus n1 closed is equal to 3. This is what they are trying to tell you. Okay, मतलब v by l minus 3v by 4l equal to 3, ऐसा बोलने की कोशिश है. तो यहाँ से मैं what I will do is I will take out v by l common. तो 1 minus 3 by 4 equal to 3.
तो V by L, this is basically 1/4 equal to 3, ऐसा आ जाएगा ये आपके पास. Okay, good. So ultimately you will have V by L equal to 12. Let us check. कहीं तो गड़बड़ अगर हुई होगी तो let me check. तो V by L, first overtone of open is 2n. Yes, correct. This is correct. First overtone of closed is V by 4l, right. फिर दोनों को हम करने वाले हैं subtract और equal to 3 मिलना चाहिए. That is also right. ये correct है. फिर हम लोगों ने V by L कॉमन निकाल लिया. 1 minus 3 by 4 बचेगा. That is 4 minus 3 by 4, 1/4. तो करेक्ट है. दिस इज ऑल करेक्ट, नथिंग टू वरी अबाउट. अब उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड 1/3 एंड क्लोज्ड पाइप इज मेड 3 times द ओरिजिनल. द नंबर ऑफ beads प्रोड्यूस्ड विल बी. अब इफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप is made 1/3, मतलब L by 3, okay, then you will have fundamental frequency of open pipe as V by 2 times of L by 3. क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ओपन के लिए V by 2L, लेकिन L क्या हो गया L by 3 हो गया. दिस इज व्हाट यू विल हैव. गुड. सो दिस you can write as 3V by 2L. Okay. अब closed pipe के लिए similarly for closed pipe you will have, so just a minute. So for closed pipe, if the length of closed pipe is made 3L, then the length of closed pipe. तो आपको पता है क्लोज्ड पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V by 4L, बट L यहाँ पे 3L हो गया अब नए केस में, तो V by 12L ऐसा आ गया आपके पास. आगे the number of beads will be, अभी इस केस में number of beads कितने होंगे, this is what they are asking you. So अभी आपको करना क्या है, NO minus NC, fundamental frequency of open pipe minus fundamental frequency of closed pipe, दोनों को subtract करोगे. तो what is NO? 3V by 2L. What is this? V by 12L. What you can take out common is V by L. 3 by 2 minus 1 by 12. But what was V by L? From equation number 1, it was 12. So this is 12. तो कर लो इसको. 36 minus 2 by 24. 1 जा 2 जा. This is 34 by 2. That is 17. Option number C. So this is how you can solve this particular question. Interesting question था. पहले ओवरटोन में जब लेंथ दोनों का सेम था तो 3 नोट्स थे, 3 बीट्स थे, वहां से V by L 12 मिल गया. फिर हमने ओपन पाइप के लेंथ को 1/3 किया, क्लोज्ड पाइप के लेंथ को 3 times किया. अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में जो नंबर ऑफ बीट्स है वो आपको पूछा है. दैट्स अ सिंपल टास्क टू डू. ओके, good. So that's sufficient for today. We'll continue with more questions in the next session.